संदीप सर को मिल बाबूजी बोलो प्लीज मैडम ना आप करें मेरी सहयोगी कृपया वो माइक पर आए और हमारे मुख्य अतिथि और दूसरे अतिथियों का स्वागत करें। Coming together is a beginning, keeping together is a progress, working together is a success. It's indeed a success mantra. In this beautiful morning, I, Anuradha, am pleased to welcome each and every one of you and Diamond. And we have Summer here today to make this morning even more beautiful. With this note, I would like to give my heartiest welcome to our chief guest, Mrs. Anuradha, CGM Secretary BLS System, our keynote speaker, Professor Tarun Arora, Head Department of Law, Central University of Punjab, Batinda. It's our growing position to begin any work. We seek the blessings of God as His wonders. So before official beginning of the program, रिस्पेक्टेड एडवोकेट, मेरा अनुरोध रहेगा हमारे कॉलेज के सेक्रेटरी संजीव जैन जी, उनसे मेरा नम्र निवेदन, तो हमारे आज के की नोट स्पीकर डॉक्टर तरुण अरोड़ा जी को बैग लगाकर मैं निवेदन करता हूं हमारे
सिरसा जिला सोसाइटी के महासचिव श्री नौरंग सिंह जी एडवोकेट को कृपया वो कॉलेज की तरह देकर उनका स्वागत करें। आओ सर। और आप सबसे मेरा अनुरोध है जोरदार तालियों के साथ मेरा अनुरोध दर्शना मैडम से ठीक है सर। कृपया वो हमारे चीफ गेस्ट को अर्ज करता हूँ राष्ट्रीय गान के सम्मान। भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हमारे सिरसा एजुकेशन सोसाइटी के जो वरिष्ठ सदस्य हमारे बीच। Good morning all. Good morning all. It gives me great pleasure in welcoming all of you in the first international seminar of Lala Hansraj Putela College of Law, Sirsa. The college was established in 2006 by Sirsa Education Society, Sirsa, with a vision to provide legal awareness and legal education to the society. On behalf of the college and our society, I welcome our chief guest, Shrimati Anuradha ji, Chief Judicial Magistrate cum Secretary, District Legal Services Authority, Sirsa. She joined judicial services in year 2011 as a judicial magistrate at Panipat Division. Being the part of third pillar of Indian democracy, she ensured that the law of the land is implemented in letter and spirit, and a sense of justice and fair play prevails in society. We are so honored to have her as a chief guest in this seminar. We also welcome Professor Tarun Arora, Head Department of Law and Dean School of Legal Studies, Central University of Punjab, Batinda, as keynote speaker in this seminar. He is the life member of Indian Institutions of Public Administration, New Delhi, also associated with United Nations Development Programme as Master Trainer on International Biological Diversity Law, Ministry of Parliament Affairs on Capacity Building of Youth through National Youth Parliamentary Competition as jury member, as well as coordinator, member of Network of Indian Competition Expert, Competition Commission of India, member in other different public service commissions and Punjab Legal Services Authority. Recently, his paper on administration of justice during pandemic has been included in the COVID-19 based research database of WHO. We also welcome Professor Ashok Kumar Makkad, Head Department of Law, CDLU, Sirsa. We are grateful to him for accepting our invitation and becoming as honorable guest for today's event. I also want to welcome our participants who have come up here to Lala Hansraj Putela College of Law, Sirsa from across the country to present their views on the very topic. I feel honored to welcome all media persons and my fellow colleagues for taking keen part in this program, and also welcome our society members, Shri Nowrang Singh ji, Shri Suresh Kumar Goyal ji, Shri Praveen Bagla ji, ex-president, member Shri Desh Kamal Bishnoi ji, Shri Latiusha Putela ji, and office bearer of this college, Shri Suraj Bansal ji, Shri Sanjeev Jain ji, और Shri Ramesh Mehta ji. Thank you, sir. Law, humanity and social science help us to understand the world better, assist us in establishing our own beliefs, help us to listen, understand and compare human experience. And I assure that we all will feel enriched with the knowledge after completion of this event. I welcome all once again to the seminar, and without taking much of your time, with the permission of honorable guest and member of education family, I would like to request Mr. Naresh Kumar Malik to kindly proceed with this event. Thank you and welcome again.
respected Judicial Magistrate, come Secretary District Legal Services Authority Sirsa, respected keynote speaker Professor Tarun Arora ji, Head Department of Law, Central University of Punjab, Bhatinda, respected guest of honor Professor Ashok Makkar ji, Chairman, Law Department, CDLU Sirsa, respected Norang Singh ji, General Secretary, Sirsa Education Society, respected Principal Dr. Anup Singh जी, हमारे सिरसा एजुकेशन सोसाइटी की सदस्य श्रीमती उषा फुटेला जी के महत्वपूर्ण योगदान के साथ जहां आप बैठे हैं, जिस कॉलेज में आप बैठे हो, उस कॉलेज की स्थापना हुई। मैं हृदय की संपूर्ण भावनाओं के साथ उन सभी सिरसा एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य और आज के जो सदस्य हैं उनको मैं दिल से नमन करता हूं और उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे करता हुआ अब मैं आमंत्रित करता हूं मेरी साथी मैडम अनुराधा जी को, कृपया वो हमें आज इस Before we start, let me throw some light on the theme of the seminar: Law, Humanity and Social Science. It's a fact too often forgotten that law touches at some point every conceivable human interest, and that its study is perhaps above all other precisely one which leads straight to the humanities. Law plays an important role in social transformation by having a direct impact on society. This seminar will spread awareness on law, justice and help in the field of research as well. Because alone we can do so little and together we can do so much. Once Justice P.N. Bhagavati stated that government alone will never be able to do it. It is only the people themselves who must utilize law for the purpose of bringing justice at the doorstep of the large masses of the people of the country. So we all are here to serve the purpose. Now I am going to introduce our keynote speaker. People who feel good about themselves, do great work, create great things. One such person is with us. His extraordinary personality does not need any introduction. Professor Tarun Arora ji. Presently serving at Central University of Punjab as Head Department of Law and Dean of School of Legal Studies, life member of Indian Institute of Public Administration, New Delhi. Besides, associated with various professional bodies. Contributed in enriching the syllabus of being a member of Board of Studies at various universities. Guided more than 25 research scholars in their research pursuits. Recently, his paper on administration of justice during pandemic has been included in COVID-19 database, WHO, and his exposure at international and national conferences. He is awarded on Law Day 2008 by Lord Justice Stephen Phillips, House of Lords UK, on behalf of International Council of Justice at Vigyan Bhavan, New Delhi, India. It's our privilege to have you our keynote speaker, sir. So without consuming any time, I would like to call upon Professor Tarun Arora to accompany us on the dais to enlighten us with his words of true wisdom. Please welcome, sir, with a round of applause. So very pleasant morning to you all. Chief guest of today's seminar, Mrs. Anuradha ji, the Chief Judicial Magistrate and Secretary District Legal Services Authority, Advocate Shri Norang Singh ji, Shri
Sanjeev Jain sir, my elder brother and mentor, Professor Dr. Ashok Makkad, Chairperson Department of Law, Chaudhary Devilal, University Sirsa, Dr. Anup Singh Ji Dahiya. I also acknowledge the gracious presence of Shri Rajiv Makkad, Dr. Bimla Lathar from Department of Hindi, Hisar, CRM College, dignitaries of the dais, faculty of Lala Hansraj Futela, College of Law, Sirsa, and सम्मानीय श्रीमती उषा फुटेला जी, आप सबको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ लॉ स्कूल ऑफ स्टडीज की तरफ से मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। First of all, I would like to express my gratitude towards the principal and the managing committee of this trust, Sirsa Education Society. I am thankful to the General Secretary, the members of the managing committee, the principal, Dr. Anup Singh Ji, for associating me with this pious endeavor of sensitizing the young minds and ignite them with the sense legal literacy. I am also thankful to Professor Ashok Makkad, who connected me to Sirsa Education Society, Lala Hansraj Ji Futela Law College, और इसी के साथ कीनोट एड्रेस की जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठाने के नाते मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं उस शख्स जिनकी याद में यह कॉलेज, यह विधि विद्यालय, महाविद्यालय स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ मैं मंच पर विराजमान, एक बात कि हिंदी बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि हम हरियाणा में हैं, है ना, भारतीय हूं अपने कर्म से। अगर इंग्लिश नहीं बोल रहा उसका यह मतलब नहीं कि मेरी इसको कमजोरियां कहा जाए, क्योंकि अगर मैं गंगानगर की गलियों से निकलता हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ तक हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो इट मींस कि आई कैन स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश। सो डोंट टेक इट दैट इन काइंड ऑफ माय वीकनेस। तो जब सबसे पहले मंच पर विराजमान सब गणमान्य शख्सियतों को, सिरसा नगर की गणमान्य हस्तियों को, वह इन विद्यार्थियों को आज 4 फरवरी 2023 के इस अवसर पर जब लाला हंसराज फुटेला जी के नाम पर स्थापित इस महाविद्यालय में प्रथम राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, आपको इस सुनहरे ऐतिहासिक अवसर पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। तो दोस्तों, दूसरी बात कि इस सभागार में उपस्थित जो भी हमारे शख्स व्यक्ति विद्यमान हैं, उपस्थित हैं, मेरी नजर में आप लोग बड़े पुण्य आत्माएं हैं। अब अगर इस पुण्य आत्मा का हम डीकंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि जो जिम्मेवारी है वो की नोट एड्रेस की है, और की नोट एड्रेस की जिस पर जिम्मेवारी हो वो विचार गोष्ठी के मंच को विचारों के आदान प्रदान के लिए एक गति प्रदान करता है, वो बीज रखेगा। तो बेटे जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ चुके हैं और जो पढ़कर मास्टर डिग्री, स्नातक अब एलएलएम में लेके, और जो एलएलएम लेने के बाद पीएचडी करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, आपको कुछ चीजें कि आपने पढ़ना कैसे है, लॉ को पढ़ना कैसे है, और पढ़ने के बाद समझना कैसे है, और समझने के बाद चिंतन कैसे करना है, इस विचार पर मैं अपना की नोट एड्रेस रखूंगा, अपना कुंजीवत भाषण।
तो व्यक्ति दो तरह के होते हैं, और उसी तरह से आपका जो अध्ययन की प्रणाली है, LLB 3 years एंड LLB 5 years, इसके दो चरण हैं। एक है असिमिलेशनिस्ट और एक है कंस्ट्रक्टिविस्ट। असिमिलेशनिस्ट का मतलब जो लिखा है आप उसको पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे, उसको याद रखेंगे, स्मरण रखेंगे, और ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएशन में जब 3 साल या 5 साल का विधि का पाठ्यक्रम आप पढ़ते हैं तो इस दौरान आप उसको पढ़कर अपनी स्मरण शक्ति का वह परिचय देंगे। और जो परीक्षा का पद्धति होगी वो ये होगी कि आपको कितनी धाराएं याद हैं, कितने एक्ट याद हैं, और कौन सी धारा जीवन के कौन सी घटना पर लागू होगी, और लागू करने की इस प्रणाली को ही आपका व्यवहारिक ज्ञान माना जाएगा कि क्या आप वास्तव में जो लिखा गया है आप उसको जीवन की वास्तविक यथार्थपरक तथ्यात्मक घटनाओं पर लागू कर सकते हैं। यही जो अनुराधा जी आपको इस सेमिनार का ऑब्जेक्ट बता रहे थे, इस विचार गोष्ठी का उद्देश्य पर वो प्रकाश डाल रहे थे, तो उन्होंने बोला लॉ सोशल साइंसेज। प्लीज भाई साहब, लॉ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, विधि, सामाजिक विज्ञान व कला। विधि का उन्होंने एक बड़ा अच्छे कथन दिया। क्या आपने उस कथन पर सोच समझकर ग्रहण कर चिंतन किया कि विधि सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक बदलाव का एक बड़ा महत्वपूर्ण साधन है। अब उस सामाजिक बदलाव में विधि किस प्रकार से बदलाव लाएगी, और उन्होंने फिर एक बात करी कि कला में भी कहीं ना कहीं इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर संबंध रहता है। अब इन बातों पर चिंतन अगर किया तो हम हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट, सृजनात्मक विचारों के। नहीं तो अगर हम समझ गए पर अपने आप को व्यक्त करना नहीं जानते तो हम क्या हैं, घोषणात्मक विचारों के, असिमिलेशनिस्ट। की समझ तो आ गया जी, अभी मतलब अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको इस महाविद्यालय में आपको चिंतन भी करना आना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जिसमें चिंतन की क्षमता, चिंतन की सामर्थ्यता दी गई है कुदरत के द्वारा। इसीलिए मैंने आपको पुण्य आत्मा बोला, और उसके पीछे एक कारण और है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर आपने जीवन में 1 गुना पिछले जीवन में 1 गुना पुण्य किए तो आपको मनुष्य योनि मिली। आपने 2 गुना पुण्य किए तो आपको भारत भूमि मिली। आपने 3 गुना पुण्य किए तो आपको उच्च शिक्षा मिली। बहुत है, 3 गुना हो गए, चलो 1 गुना और। तो क्या तालियों की आवाज अभी इस हद तक नहीं आई, काफी लोग अभी असंतुष्ट हैं। तो शायद उन्होंने, मेरे को लगता है कि 3 गुना मेरे जैसे और 2 गुना वालों से भी ज्यादा किए होंगे। तो इससे ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि 4 वेद हैं, इसीलिए ये भी संख्या पुण्यों के भी जो स्टेजें हैं, चरण हैं, वो 4 हैं। तो जिन्होंने 4 गुना पुण्य किए उनको ऐसे विद्वानों का संग मिला, सत्संग मिला, इसलिए आपको पुण्य। मेरे को लगता है तालियों की आवाज ठीक है, इससे ज्यादा पुण्य की व्यवस्था नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जो विषय है, क्योंकि विषय इन्होंने इतना जटिल दिया है, सुनने वालों को शायद वो आसान लगता है, लॉ सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटी। इन्होंने कुछ मेरे लिए छोड़ा नहीं कि मैं अपना काम किस तरीके से आसानी से निपटा लेता। ठीक है, मिनट दिए आधा घंटा, 30 मिनट, 10:30 पे शुरू करके मेरे को 11 बजे खत्म करना था, जबकि मेरे को मंच पर आने का निमंत्रण मिला 10:59 पर, और मेरी घड़ी में अभी टाइमर लगा हुआ है और 11:10 हो गए, मिनट बचे 20। अब उस 20 मिनटों में जो इन्होंने मेरे को क्षेत्र दिए हैं, डिसिप्लिन, उस पे अंतर संबंध पर चर्चा करना बहुत ही, चलो सागर में से सागर को गागर के रूप में प्रस्तुत करना है बड़ा मुश्किल, है ना। अब बात यह है कि आज के समाज में हम लोटे लेके बैठे हैं,
समझ रहे हो ना? और लोटे में बाल्टी में कैसे लटकाऊंगा? तो जितना मैं बिखेरता हूं, देखते हैं किसका लोटा भरता है। कोशिश करूंगा, पर 20 मिनटों में डिस्क्लेमर डाल रहा हूं। जैसे डिस्क्लेमर समझते हैं आप, अस्वीकरण, प्रत्याख्यान। जब भी कोई पिक्चर आती है, मूवी आती है, उस मूवी के शुरुआत में एक डिस्क्लेमर आता है कि इस जो हम दिखाने जा रहे हैं, इसमें ये सब काल्पनिक है, कथानक, पात्र, घटनाएं। अगर इनका किसी के जीवन से या जीवन की सत्यता, घटनाओं से कोई ताल्लुक नहीं है, पर अगर है तो वो संयोगवश है, इसलिए हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो डिस्क्लेमर ये है कि जो भी मैं बोलने जा रहा हूं अगले 19 मिनट में, भाई वो इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव यानी समावेशित। दैट इज नॉट एग्जॉस्टिव डिस्कशन। वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है। इसलिए वो आपको जो ट्रेलर दिखाने जा रहा हूं, अगर उस ट्रेलर के बाद भी आपके दिमाग में कोई विचार रहता है कि मैं अपने चर्चा को पूरा ना कर पाऊं, मैं ये नहीं कि 20 मिनट से अपनी सीमाओं को लांघूंगा, क्योंकि आजकल हमारे देश में, हमारे विश्व में, हमारे आसपास, हमारे समाज में सीमाओं को लांघने वालों की संख्या ज्यादा है, सीमाओं में रहने वालों की संख्या कम है। और जब तक हम सीमाओं में नहीं रहते, हमारा महत्व नहीं बनेगा। पानी है, बिखेर लो। जब तक आप उसको किसी बर्तन में समाहित नहीं करते, उसका कोई महत्व नहीं है। वो सड़क पर पड़ा हुआ गंदगी का, बीमारियों का कारण बनेगा। इसी तरह विचार, कानून, समाज में बदलाव, जब तक हम सीमाओं में नहीं रहते, ये मुश्किल है कि हम अपने जीवन को सार्थक करेंगे। सफल जरूर कर लेंगे ये बता के कि भाइयों बहनों, 34 दिनों के सेशन में हमने 150 कानून पास कर दिए, पर उन कानूनों का जीवन पर फर्क क्या पड़ा? इसलिए थोड़ा चिंतन ही जीवन को सार्थक बनाएगा। सफल तो आप हो गए, इतने सारे कानून पास कर दिए। अब जिम्मेवारी हम लोगों की पड़ेगी कि उतने कानूनों में कितने सारे मुकदमे आ रहे हैं, और उन मुकदमों को, उनका निपटारा करने के लिए क्या हमें उस तरह की सुविधाएं और उस तरह के मानवीय संसाधन उनसे सुसज्जित किया गया, उनसे युक्त किया गया है। तो ये कई चीजें हैं जो विचारणीय हैं और विचार करने योग्य हैं। तो डिस्क्लेमर ये था कि समय सीमा, दूसरा ये कि असिमिलिएशनिस्ट बिल्कुल नहीं, कंस्ट्रक्टिविस्ट होने के नाते, क्योंकि विषय ऐसा है, इसमें समाज भी आएगा, राजनीति भी आएगी, विधि भी आएगी, आर्थिक चिंतन भी आएगा। तो इसलिए हो सकता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक भी नहीं हूं, विरोधी भी नहीं हूं। तो जो अपने विचार रख रहा हूं वो एक रिसर्चर की भांति रख रहा हूं, इसलिए उनको उसी दृष्टि से देखा जाए, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी के झंडा प्रदार की तरफ। ठीक है, तो अब मैं शुरू करूंगा। दोस्तों, जिस सदी में हम जी रहे हैं, और 2020 से लेके 21 मार्च 2020 से लेकर जो 6 महीने इस मनुष्यता ने, पूरी मानवता ने जिस तरीके से निकाले, याद करके भी आधों के रोंगटे खड़े हो गए होंगे। Everyone was under the house arrest. पहले हम देखते रहे, सर आप लोग बड़े हैं, है ना, आप लोगों ने इमरजेंसी भी देखी होगी, 1971-72 की युद्ध भी देखा होगा। तो एक स्थिति थी, उसका जो प्रभाव पड़ा, तो भाई साहब बैठे हैं राजीव जी, उसका प्रभाव पड़ा इधर फाजिल्का, अमृतसर, इन एरियाज में, कि जब ये सिटीज खाली करवा लिए जाते थे। ठीक है, परंतु उसके बाद अगर नक्सलाइट प्रॉब्लम्स भी आई देश में, उग्रवाद भी आया, और इसी तरह उधर अल्फा और ऐसी समस्याएं नॉर्थ ईस्ट में आई, समस्याएं जब भी आई वो देश के एक क्षेत्र विशेष में आई, तो उसका जो पीड़ा है, दर्द है, वो उसी क्षेत्र विशेष के लोगों को पता है, वो पूरे भारत के लोगों को नहीं पता। परंतु ये जो 2020 वाली चुनौती सामने आई, इसने क्षेत्र छोड़ो, राज्य छोड़ो, देश छोड़ो, इवन साउथ एशिया, दक्षिण एशिया छोड़ो, मध्य दक्षिण एशिया छोड़ो, पूरे ब्रह्मांड को, everyone was placed under the house arrest. अब इसके आगे क्या? और जब 2020 के बाद 21 में धीरे धीरे दुनिया, जनता आपस में मिलना शुरू हुई, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि क्या विश्व को एक नए सामाजिक अनुबंध की जरूरत है। पॉलिटिकल साइंस के बच्चे बैठे होंगे, या पॉलिटिकल साइंस के मेरे
अध्यापक साथी बैठे होंगे, तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी आती है, सुनिए किसी ने, जूरिस्प्रूडेंस में भी आती है। किसी बच्चे को याद है? Who are the thinkers who expounded the theory of social contract? हाँ जी, वेरी गुड। हाँ, और रूसो, हॉब्स और लॉ। भाई ताड़ियां मारो सब इनके लिए जिन्होंने बोला। इसीलिए ये चिंतन 4 गुना जिन्होंने किया ना, उनको ऐसे सज्जनों का साथ मिला है, पुण्य 4 गुना। तो हॉब्स, लॉक एंड रूसो, क्या उससे पहले भी आप सोचते हैं कि स्टेट पर स्टेट की थ्योरी, जो राज्य का सिद्धांत है, राज्य की संकल्पना, राज्य कैसे उत्पन्न हुआ, इस बात पर कभी विचार हुआ हो? इससे पहले, ये तो मध्यकालीन युग की बात है, 15वीं सदी की। क्या इससे पहले हमने कभी चिंतन किया या शोध किया है सर? हाँ जी, ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल के अंदर है, मनुस्मृति में है, ब्राह्मण ग्रंथों में है। बिल्कुल। अच्छा, एक बार और ताड़ियां मार दो। अब प्रश्न ये है कि उस संकल्पना को हम किस विचार से जानते हैं, वो ध्यान है आपके जी, जो आपने बिल्कुल सही फरमाया, उस को किस विचारधारा के नाम से जाना जाता है? वहां पर भी सर जैसे 2 प्रकार का राज्य था, एक जो वंशानुक्रम राज्य राजतंत्र का था, दूसरा गणतंत्र का, कि लोगों की सहमति के लिए, लोगों के लिए भी कोई ना कोई कानून होना चाहिए, राजा के ऊपर भी पाबंदी जो लगा सके। बोल ये सही नहीं है, ये विचार की व्याख्या कर रहे हैं, और इस विचार का जो सिद्धांत था उसको हम हमारे ऋग्वेद में, कौटिल्य में, इवन जब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को शांति पर्व में वो उपदेश दिया था, तो बार बार ये जिक्र आता है। और जब राम और भरत का मिलन होता है ना, चित्रकूट वाली साइड, तो वहां पर भी इसका जिक्र आता है, जब राम भरत को ये बताते हैं कि तेने राज्य कैसे चलाना है। और इसी तरह युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने बताया। इसी तरह कौटिल्य ने, वो सिद्धांत है मातस्य न्याय का सिद्धांत। मातस्य न्याय, मत्स्य न्याय आप समझते हैं, मत्स्य हिंदी भाषा में किसके लिए प्रयुक्त किया है? ये एक संकेत है जहां ऐसा समाज हो जहां बड़ी मछली छोटी मछली को बल के आधार पर खाने के लिए हमेशा आतुर रहेगी। समझ आ रहा है? और अगर आप इसको हॉब्स से जोड़कर देखो, हॉब्स, थॉमस हॉब्स, तो क्या कोई फर्क लगता है? अंतर है? कोई अंतर नहीं है साहब, क्योंकि हॉब्स ने बोला द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट ओज इट्स एग्जिस्टेंस टू द स्टेट ऑफ नेचर। प्राकृतिक अवस्था को ये राज्य अपनी अस्तित्व का कारण मानता है। प्राकृतिक अवस्था में क्या? जिसकी लाठी उसी की भैंस। एंड द लाइफ बिफोर स्टेट वाज नेस्टी, ब्रिटिश एंड ओप्रेसिव। यही बोलते हैं ना हॉब्स, इसलिए स्टेट एग्जिस्टेंस में है। तो ये मातस्य न्याय क्या दिखा रहा है कि लाइफ बिफोर स्टेट वाज ब्रिटिश, नेस्टी एंड ओप्रेसिव। ब्रिटिश यानी निरंकुशवाद था, नेस्टी यानी जो व्यक्तियों का, जीवों का, सामाजिक व प्राकृतिक संसाधनों का जीवन चक्र था, बड़ा क्षणिक था। और इस तरह ओप्रेसिव, दमनकारी था। अब प्रश्न ये है, हॉब्स ये कह गया है ना, पर आपको भाई साहब ने हॉब्स से 2500 से 5000 साल पहले की उन्होंने आपको जानकारी दी। कौटिल्य से हम बैक टुवर्ड्स जाएं, ईसा पूर्व तो ऋग्वेद है ना, और फिर रामायण और महाभारत में भी मातस्य न्याय का जिक्र आता है। परंतु हम फिर भी हम भूले हुए, भटके हुए, आत्मबल, आत्म गौरव की तरफ सुषुप्त अवस्था में भारतीय हैं, क्योंकि हमारे लिए पूरा विश्व ये जानता है कि हम भारतीय सुबह उठते जल्दी हैं परंतु जागते देरी से। हमें पता ही नहीं है कि हमारा इतिहास इतना अमीर है। हम हॉब्स, लॉक, रूसो से बाहर जाते ही नहीं। ठीक है, इसी तरह मैं आपको मध्यकालीन भारत में, क्या आपके ध्यान में कि मध्यकालीन भारत में कौन से ऐसे भारत की धरा पर ऐसे थिंकर हुए, विचारक हुए, चिंतक हुए जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मध्यकालीन भारत। उन्होंने बोला 1956 का जिक्र किया, तब ये किस राज्य की रियासत था? पंजाब। पंजाब। और पंजाब
किस मुख्य धारा के लिए जाना जाता है? पंजाब में सबसे ज्यादा कौन सा धर्म प्रफुल्लित हुआ जो आज विश्व का सबसे आधुनिक धर्म है? सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक साहब ने, है ना, गुरबानी में बोला स्टेट ऑफ नेचर, उसको बोलते हैं डार्क एज, अंधकार का युग, अंधकार का समय। और वो बोलते हैं नाव फकीरी पातशाही मूर्ख पंडित नाव। इसका एक्सप्लेन भी करूंगा। अंधे का नाव पारखू एवे करे गुआओ। बोलते हैं द बेगर्स आर नॉन एज द एम्परर्स। ध्यान रखना, कहीं ये आज या बीते हुए कल या आने वाले कल में ऐसे लोग तो सत्ता में नहीं है, कहीं ये लागू तो नहीं हो रहा। कहते हैं द बेगर्स आर नॉन एज द एम्परर्स एंड द फूल्स आर नॉन एज द रिलीजियस स्कॉलर्स। इल्लत का नाव चौधरी कूड़ी पूरे थाओ, नानक गुरमुख जानिए कलयुग का एह न्याव। कहता द ब्लाइंड मैन्स आर नॉन एज द सीयर्स, विजनरी। दिस इज हाउ द पीपल टॉक इन दिस डार्क एज। The troublemakers are called as the leader and the lawyers are seated on the seats of honor. समझ आ रहा है सर? ओ नानक, the Gurmukh knows that it is justice of the dark age. तो ये क्या कोविड-19 ने ये जाहिर नहीं कर दिया, प्रकट नहीं कर दिया, वो पर्दा आवरण का सिद्धांत उठा नहीं दिया जिसको पंजाबी में बोले थे कोंडी चुकाई नहीं करती। It has exposed us to the vulnerabilities and inequalities. Those are deeply penetrating in the Indian society. जो हमारे समाज में, ना केवल सामाजिक व्यवस्था में, बल्कि हमारे संस्कृति तक के अंदर असमानताएं, एक विषमताएं बनकर उभर रही हैं। इसीलिए आज हम अलग अलग नामों से भारत भूल गए, परंतु अलग अलग जात, अलग अलग पात, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के नाम पर लड़ रहे हैं। जबकि बात सिर्फ एक थी, एकम सद्विप्रा बहुधा उदयंती, सत्य एक है, नहीं हमारे लिए नहीं। तो जो स्टेट एग्जिस्टेंस में आई थी दोस्तों, अब स्टेट पर चल रहा हूं। स्टेट जो एग्जिस्टेंस में आई थी, आप बड़ा सिंपल कंस्ट्रक्शनिस्ट अपना माइंड यूज करिए, सृजनात्मक, कि जब स्टेट एग्जिस्टेंस में आई किस लिए आई? सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी किससे? सुरक्षा किससे करनी है? आक्रमण बाहर से होगा, अंदर से होगा? मैन इटसेल्फ, है ना? तो ये साइंस वाले होते हैं। हालांकि वो अनुराधा जी ने बात बड़ी अच्छी कही कि लॉ, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज। बट फ्रेंड्स, आई हैव सम डिफरेंट ओपिनियन बिकॉज आवर यूनिवर्सिटी इज बेसिकली रिसर्च यूनिवर्सिटी। इट डजंट इम्पार्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, इट इज इन्वॉल्व ओनली इन रिसर्च, शोध में। तो आज हम जिस युग में जी रहे हैं, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंटरसेक्शन एंड जंक्शन। जंक्शन समझते हैं ना? बड़ी ट्रेनें आएंगी ऑफ लॉ, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस में भी लॉ लागू होता है, टेक्नोलॉजी में भी लागू होता है, और साइंस हमारे जीवन में भी लागू हो रही है। मैं आवाज में बोल रहा हूं, जिस आवाज में बोल रहा हूं उसको आपको एम्पलीफाई करके एम्पलीफायर आप तक पहुंचा रहा है, ठीक है? तो जीवन के हर क्षेत्र में आज साइंस है, जीवन के हर क्षेत्र में आज टेक्नोलॉजी है, और इन पे लॉ है। आप इस कमरे में बैठे बैठे आपको यह ध्यान में ला दूं कि कम से कम 12 से 15 कानून इस कमरे में बैठे बैठे लागू हो रहे हैं। सोच सकते हो कौन कौन से? थर्ड ईयर वाले तो बता ही सकते हैं। इस कमरे, इस सभागार में बैठे कितने कानून लागू हो रहे हैं? सोचिए। क्या लिया मैंने? सांस। विच लॉ इज एप्लीकेबल? आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 का मूल कहां है? अभी मैंने कौन कौन से थिंकर, कौन कौन से थ्योरी के अधीन बताए? हॉब्स, लॉक, रूसो। ये कौन से सब्जेक्ट में डिस्कस करते हैं भाई? पहले अब देखो, सत्य एक है, हॉब्स एक है, लॉक एक है, रूसो एक है, नानक एक है, बेंथम एक है, कौटिल्य एक है, रामायण एक है, महाभारत एक है। कुछ कह रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, कुछ कह रहे हैं जूरिस, और कोई मेरे जैसा पैदा हो गया वो बोलेगा ना लीगल थ्योरी है। Is there any difference between legal theory and jurisprudence? What is the difference?
बाद में बात करते हैं, जिनको पता है एक सेशन पर बाहर लगाएंगे। बहुत बारीक डिफरेंस है और बहुत जरूरी है वो जानना। चलो अब पॉलिटिकल साइंसेज जूरिस्प्रूडेंस ये सोच लेना, तो सांस ली और छोड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भाई, जूरिस को जरूर याद रखा करो, क्योंकि सबका मूल जूरिस है। जूरिस वही है जो कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में बोला अहम ब्रह्मास्मि। उस तरह से जूरिस आपको अगर सही मायने में आता है तो आप पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान अपनी मुट्ठी में रखेंगे। इसलिए उस सब्जेक्ट को कभी मत भूलो। जूरिस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको यहां बिठा रखा, आदेश दिया गया, नोटिस दिया गया और नोटिस के चलते आपको यहां बिठाया गया, तो कौन सा लॉ लागू हुआ? डिसिप्लिन में बैठे हो, नाच नहीं रहे, गा नहीं रहे, ताड़ी नहीं मार रहे, शोर नहीं कर रहे, कौन सा लॉ लागू हो रहा है? सोचो। जिसकी अटेंडेंस शॉर्ट है, नोटिस जाएगा, नोटिस जाने के बाद 2 बार नोटिस जाने के बाद, शो कॉज देने के बाद अगर उसका रीजन एक्सप्लेनेटरी नहीं पाया जाता, उसका रोल नंबर डिटेन किया जाएगा। कौन से लॉ के तहत किया जाएगा? सोचो। ये फोटो वाले अगर कॉलेज के हैं तो ठीक है, नहीं कॉलेज के या बाहर से आए हैं तो इनको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि फोटोग्राफी आप करोगे, कौन सा लॉ लागू होगा? ठीक है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में कौन सा लॉ लागू होगा? भैया कितने कानून हैं, मैंने बोला 12 से 15 लागू होते हैं। तो इसी तरह साइंस पे ये क्या, ये आहूजा का स्टिकर मैं किसी और माइक पे जो इंडिजिनियस माइक है यहां बनाकर हम देसी बना देते हैं, क्या यूज कर सकता हूं? नहीं कर सकता। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ठीक। तो इस तरह से वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड आफ्टर कोविड-19 फ्रेंड्स, आई हैव means I am just thinking, is there any need to revisit the theory of social contract? क्योंकि स्टेट 3 अधिकारों की रक्षा के लिए एग्जिस्टेंस में आई थी। वो थे लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। यही हॉब्स ने बोला, यही लोक ने बोला, यही रूसो ने बोला। और अगर हम जो शांति पर्व में जो मातस्य न्याय के चलते एक सिद्धांत दिया गया और राज्य का सप्तांग का सिद्धांत, किसी को पता राज्य के कितने एलिमेंट है? 4 मत बताना भैया। वो जियोग्राफिकल टेरिटरी, सोवरेनिटी, गवर्नमेंट, पीपल, ये नहीं। राज्य के कितने एलिमेंट्स हैं? हिंदू शास्त्रों में राज्य के 7 सिद्धांत दिए गए। सप्तांग का सिद्धांत बोलते हैं, सप्त आंग, किंग, किंगडम, राज्य मतलब राजा, राजधानी, भूगोलिक क्षेत्र और पूंजी, कैपिटल यानी, ठीक है। और जब वो लार्ज स्केल पे है, पूरी प्रजा के लिए है, तो ट्रेजरी जैसे कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, आर्मी एंड एलीज। देखा होगा आपने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय विदेशों में यात्रा करते हैं और विदेशों में अपना वो गठबंधन करते हैं ताकि हमें अंतरराष्ट्रीय सामाजिक अंतर्निर्भरता के सिद्धांत पर चलते हम हर चीज को उत्पादित नहीं कर सकते, परंतु कुछ चीजें उनकी उत्पादित करते हैं, कुछ चीजें हम उनसे लेते हैं, कुछ देते हैं। तो वो जो सामाजिक अंतर्निर्भरता का सिद्धांत है, एलीज, गठबंधन, तो इस तरह से राज्य का सप्तांग का सिद्धांत जो है, ठीक है। तो अब ये किस लिए एग्जिस्टेंस में आया? 3 अधिकारों की रक्षा, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। परंतु क्या कोविड-19 ने कितने सारे अधिकार हमारे दिमाग में उस वक्त पैदा कर दिए? जम्मू कश्मीर और केरला और तमिलनाडु, ठीक है। लोग मांग रहे हैं कि साहब पढ़ाई नहीं हो रही है, लोग कह रहे हैं कि बिजनेस नहीं हो रहा है इंटरनेट के बिना, ठीक है। केरला में 10वीं और 12वीं के बच्चों ने और तमिलनाडु में सुसाइड करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मां बाप के पास मोबाइल नहीं था। समझ आ रहा है? तो नाउ अगर आप कह रहे हैं राइट टू एजुकेशन आपका है, और राइट टू एजुकेशन कोविड-19 के दौरान भी है, और वो हाउस अरेस्ट में रहते हुए के दौरान भी है, परंतु मोबाइल नहीं है और घर वालों के पास, पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस मोबाइल के लिए अफोर्ड कर सके इंटरनेट को। डू दे हैव राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट? क्योंकि एजुकेशन विदाउट इंटरनेट इन दोज डेज वाज इम्पॉसिबल, विदाउट इमेजिनेशन, बियॉन्ड इमेजिनेशन, संभव ही नहीं थी साहब। एंड देन राइट टू मेडिकल ट्रीटमेंट, एक्सेस। भाई कोरोना वालों को टेस्ट करवाना पड़ गया, उनका तो कर दिया, जिसका डायलिसिस होना था, जिसकी कीमोथेरेपी होनी थी, जिसकी प्रेगनेंसी होनी थी, वो कहां डिलीवरी कराएंगे? और उस दौरान डिलीवरी पे जो 50,000 में डिलीवरी होती थी, मेरे पास केस स्टडीज हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता, वो
डिलीवरीज बच्चों की 5-5 लाख रुपए में बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद में हुई है और डॉक्टर एडमिट नहीं करते थे। When we will have right to access to internet, look at the teachers, look at the doctors, look at the nursing staff, look at the judges, look at the police staff. Didn't they have the right to privacy? They were working round the clock. Even teachers को भी रात को बच्चा 2 बजे फोन कर रहा, सर मेरा पेपर रह गया था, उस वक्त इंटरनेट नहीं चल रहा। What nonsense! They are certainly the servants of the society. They are public servant and covered under section 2105 PC if you look at the financial aspect. But they are not slaves. They are also enjoying protection against bonded labor and they also have right to live with dignity. Police staff and those who are the single ladies, who are the divorcees, who are the widows, the state did not provide them any transportation means. Where they will go if they are working from headquarter, means space situated away from headquarter. There was no means of transportation. And अगर एक लड़की या एक लड़की एक विधवा है, डाइवोर्सी है या वो अकेली है, शादी भी नहीं हुई, उसके घर पे कोई नहीं है, ठीक है, और वो जहां रह रही है, जैसे दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे के शहरों में आपने देखा, she has to travel every day 60 किलोमीटर डिस्टेंस। भैया स्टेट ने क्या साधन उपलब्ध कराया? चलो साधन नहीं उपलब्ध कराया, भैया मैं मेडिकल ऑफिसर हूं, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि आपने डेली ड्यूटी पे आना है, मैं थाना इंचार्ज हूं, तो प्रश्न ये उठता है कि क्या मैंने ये जो डेली इतना सफर करके आ रही है इसके यहीं रहने का इंतजाम किया? वो है ही नहीं भाई। यूनाइटेड नेशंस चार्टर देखिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर, लीगल थ्योरी एंड जूरिस्प्रूडेंस की बात पे आता हूं, उसमें क्या था? स्टेट केम इनटू बीइंग इन द पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर एरा। द यूनाइटेड नेशन चार्टर, इट्स प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट्स that the purpose of the state is to ensure freedom from fear and freedom from want. डर से मुक्ति, चाह से मुक्ति। जो काम आपके घर में आपके माँ बाप करते हैं, आपका टाइम देखते हैं, समय देखते हैं, समय के अनुसार खाना बना पड़ा होता है, आपको ये जाके नहीं कहना पड़ता, समय के अनुसार आपका खाना टेबल पे पड़ा होता है, या चपाती बॉक्स में चपाती पड़ी है, सब्जी पड़ी है, आप अपने गर्म करो और खाओ। State has to perform the role of parents patriae in a welfare state in the post Second World War era. And UN Charter says freedom from fear and freedom from want. Fear था या नहीं था कोविड के दौरान, इसका फैसला कौन करेगा? आप लोग। want थी या want, आप हर चीज आपको घर बैठे मिल रही थी, या आप जगह जगह हाथ फैला के खड़े थे? I am not talking about Indian political milieux landscape. No, take the state as a whole for the humanity. अब जब बात आती है ये इंटरनेशनल लॉ की, जूरिस की, कॉन्स्टिट्यूशन की और लीगल थ्योरी की और भारतीय इतिहास और राजनीति विज्ञान की मैंने बात करी आपके आगे, इसी तरह कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट की बात करी। 1 मिनट रह गया और अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं ये कहूंगा, क्योंकि अगले जो मेरे साथी बोलेंगे वो संविधान पे बोलने जा रहे हैं, और जहां तक मेरे को आइडिया, और अगर संविधान पे भी ये बोलने या आप बोलो तो दोस्तों हम बहुत कुछ बोलते हैं, संविधान की प्रस्तावना के बारे में भी बोलते हैं, संविधान के 86 शब्द सेम वही चीज जो हमारे शास्त्रों में, और इतना बड़ा संविधान, 395 आर्टिकल, ठीक है, जो आज आप 441 कह सकते हो, और 12 अनुच्छेद हैं, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। इसको मैं भारतीय संस्कृति की अमीर धरोहर के माध्यम से सिर्फ 4 ही पंक्तियों में अभिव्यक्त करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, और ये सारी प्रियम्बल 86 शब्दों में है, और ये 4 लाइनें आप देखना कि क्या इनमें से जो संविधान के 395 अनुच्छेद कोई ऐसी चीज है जो इन 4 लाइनों में, क्लासिकल जो लाइन है उसमें कवर नहीं होती। हमारा एक मंत्र है, ऋग्वेद में ही है, ओम सर्वे भवन्तु सुखाम्य सर्वे सन्तु निराम्य सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जस्टिस भी है, इक्वालिटी भी है, लिबर्टी भी है, और सरकार के अलग अलग ढंग भी हैं कि वो जो सरकार चलेगी वो किस सिद्धांत पर चलेगी, वो सत्य के सिद्धांत पर चलेगी। तो इस तरह से ये जो हमें आज सोचने की जरूरत है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे कानून किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। और आज फिर हिंदुस्तान की धरती को चिंतकों की जरूरत है, ठीक है ना, गोताखोरों की जरूरत है, तैराकों की नहीं। तैराक और गोताखोर के धर्म में एक अंतर है। तैराक
हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करेगा, गोताखोर नीचे को जाएगा। हर चीज का, हर वस्तु का अपना एक धर्म है। यही गीता में समझाया, यही गुरु नानक ने समझाया। और इसीलिए गुरु नानक ने जब बाबर का अटैक पश्चिमी उधर से हुआ दिशा से, तो उन्होंने ये बोला कि, और जो बोला उसके लिए सर मोहम्मद इकबाल, सैयद इकबाल ने एक दो लाइनें कही थी, फिर उठी आखिर सदा, फिर उठी आखिर सदा, सदा यानी आवाज, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, तौहीद यानी सीमा, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को, हिंद के एक मर्द कामिल ने जगाया हिंद को फिर ख्वाब से। ठीक है, पंजाब की सीमा है, ये भी पंजाब है, वो भी पंजाब है, हरियाणा है, ये भी हरियाणा है, वो भी हरियाणा, तो सीमा पे खड़े हैं, जागो। कहीं ये ना हो कि विश्व हमें इसी तरह देखता रहे कि हम सुबह जागते तो बहुत जल्दी है, उठते तो बहुत जल्दी है, परंतु जगते बहुत देरी से। ठीक है, तो इसलिए भारत को सलाम, आपको सलाम, क्योंकि नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया था, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। जय भारत, जय हिंद। And we have learned a lot from you. And the beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you. So now I would like to invite Mr. Malik to introduce our guest of honor and chief guest of the event. प्लीज अपनी सीट्स पर बैठिए। अभी थोड़ी देर में हमारी आज की मुख्य अतिथि अपना संबोधन आपके सम्मुख करेंगी। उससे पहले जो हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर अशोक मक्कड़ जी का मैं संक्षिप्त में आपसे परिचय करवाना चाहूंगा। ये तो आप जानते हैं कि मक्कड़ साहब हमारे लॉ डिपार्टमेंट के CDLU में चेयरपर्सन है। इनसे मिलना जुलना होता है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला मुझे इनसे, इनको ऑब्जर्व करने का मौका मिला। मैं अपनी बात शुरू करता हूं हिंदुस्तान के मशहूर शायर दुष्यंत जी के इस शेर के साथ। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। इन शब्दों को सार्थक किया हमारे डॉक्टर अशोक मक्कड़ जी अपने कर्म से, अपने ज्ञान से और अपनी मेहनत से। ये आज लॉ डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन बने। अशोक मक्कड़ जी ने अपनी बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से ली, मास्टर डिग्री भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से ली, और इन्होंने PhD MD यूनिवर्सिटी रोहतक से की, जिसका सब्जेक्ट था इनडायरेक्ट टैक्सेस। 1999 में इन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट लेक्चरर की पोस्ट को ज्वाइन किया। सॉरी, असिस्टेंट नहीं, लेक्चरर की पोस्ट को ज्वाइन किया। 5 साल के बाद 2004 के अंदर इन्होंने सिरसा में CDLU में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया। 1 जून 2004 को आज तक ये अपनी सेवाएं CDLU को दे रहे हैं। 2021 में या 20 में शायद, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, डॉक्टर साहब चेयरमैन का पद था 20 में, सॉरी 2020 में डॉक्टर साहब ने लॉ डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन का पद संभाला। अब तक वो एज ए चेयरमैन लॉ डिपार्टमेंट CDLU को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप
बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर भी हैं। आप एडवोकेट काउंसिल, जो हाईएस्ट बॉडी ऑफ एजुकेशन इन एनी यूनिवर्सिटी, उसके भी सदस्य हैं। आप कोर्ट कमेटी के सदस्य भी हैं, जो किसी भी यूनिवर्सिटी की हाईएस्ट बॉडी होती है। आप बहुत सी इंस्पेक्शन कमेटी, इंक्वायरी कमेटी और परचेज कमेटी के भी सदस्य हैं। आपने 100 से भी ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार अटेंड किए हैं। आपके बहुत से रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ रिप्यूट्स में सम्मिलित हैं, प्रकाशित हैं। पिछले माह का मुझे एक हादसा जो मैंने पेपरों में पढ़ा, मैं उसके लिए डॉक्टर साहब को भी बधाई देना चाहूंगा। इनका कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक एक्सटेंशन लेक्चर था, राइट सर, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर सभी न्यूज़पेपर ने उसकी सराहना की थी। एक ताली तो बनती है। सुपरवाइज्ड more than 100 LLM dissertation, supervised more than 10 PhD scholars, member of peer review committee of various universities। आपकी कॉमर्शियल लॉ में और क्रिमिनल लॉ में पूरी निपुणता है। मैं दिल की गहराई से अपनी तरफ से और हमारे कॉलेज की तरफ से आपके यहां पधारने पर हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। इन हिज और हर फील्ड ऑफ लाइफ, I can say with proud, Mrs. Anuradha ji is one of them. Moreover, she is a very simple and having a very graceful personality. She believes in kindness and always ready to help the needy one. You can say Mrs. Anuradha ji is rarest of rare person who believes in humanity. As a secretary, DLSA played wide role during COVID 2019. Provide legal awareness to the public through digital mode and organized vaccination camps, and also gave free legal aid services to the needy person. हृदय की संपूर्ण भावनाओं के साथ आपका धन्यवाद करता हूं मैडम कि आपने आज अपनी गरिमामयी उपस्थिति से आज हमारे इस सेमिनार की गरिमा को बढ़ाया। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं और हमारे कॉलेज की तरफ से, यहाँ आए हुए सभी अतिथिगण की तरफ से मैं आपका इस कैंपस में, इस सेमिनार में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अब आमंत्रित करता हूं आपको, कृपया माइक पर आएं और अपना संदेश आप सबको दें। अपनी सीटों से खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों के साथ। आप सबको मेरा सादर नमन। All the professors present here, all the dignitaries, respected principal, management of the school, the media, and all the curious students over here. Actually, मेरा पर्पस इस सेमिनार में पार्टिसिपेट करने का ज़्यादा था कि मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ से कुछ सीख कर जाऊँ, बजाय कि मैं यहाँ पर I be addressed as a chief guest and such heavy words are used for me. But yes, to be honest here, आप किसी भी ऐसे प्रोग्राम में
चाहे वो किसी श्रोता की तरह आए, आप किसी स्टूडेंट की तरह आए, किसी वक्ता की तरह आए। इट इज़ अनडाउटफुल कि यहाँ से आप कुछ ना कुछ अपने आप को एनरिच करके जाते हैं। जो मेरी फील्ड है बेसिकली, जहाँ पे मैं काम करती हूँ, वहाँ पे हम लॉ का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं। हम लॉ की एप्लीकेशन से डील करते हैं सारा दिन। सो इस सेमिनार से जुड़ने का एक पर्पज़ ये भी था कि लॉ को मैं दोबारा एज अ स्टूडेंट या एज एन एकेडमिशियन देखूँ और उससे सीखूँ कि किस तरह से हम लॉ को इन आवर जजमेंट्स, इन आवर डेली वर्क अप्लाई करें फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। सो कमिंग टू द टॉपिक that whether that the interconnection between humanities, social sciences and law. बेसिकली हम ये मानते हैं कि ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज और लॉ इंटरकनेक्टेड हैं, और किस तरह से इंटरकनेक्टेड है। आई थिंक वन ऑफ द आज का जो चिंतन का विषय है वो यही है। आई थिंक लॉ इज़ वन ऑफ द स्ट्रीम्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ अपने आप में इतना बड़ा है कि लॉ को हम उसका एक स्ट्रीम कह सकते हैं, जैसे आर्ट है, जैसे लिटरेचर है, जैसे लैंग्वेज है। बट आई फील जैसे, क्योंकि मैं 10 साल से जुडिशरी में हूँ, 11 साल से कार्यरत हूँ यहाँ, तो मैंने ज़्यादा इसका सोशल साइंसेज वाला एस्पेक्ट देखा है और उसी से डील किया है। और मुझे लगता है कि जनरली हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे कॉलेजेस में, जैसे अभी जब इस कार्यक्रम के विषय में हम लोग मिले तो प्रिंसिपल साहब से बात हो रही थी। जनरली क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में we deal with the empirical analytical side of the law more rather than the application based law. हम ज़्यादातर अपने जो लॉ स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज़ में लॉ को पढ़ते हैं तो हम जनरली उसको इवन इफ इट इज़ एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे हमारे जो ज़्यादातर लॉज हैं, कॉन्ट्रैक्ट है या आईपीसी है, क्रिमिनल, सिविल, सारे जो लॉज हैं, दे हैव बीन मेड बिकॉज दे हैव टू बी अप्लाइड टू द सोसाइटी। लॉ का बेसिक पर्पस क्या है? सोसाइटी पे इस तरह से उसको लागू किया जाए कि सोसाइटी एक डिसिप्लिन्ड सोसाइटी बनकर रहे। बेसिकली दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एनी लॉ, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ सेड दैट लॉ डेवलप्स विद द सोसाइटी, इट इवॉल्व्स विद द सोसाइटी। यही है, यही हम बिलीव करते हैं कि जैसे जैसे सोसाइटी का रूप बदलता है वैसे वैसे हमारा लॉ बदलता है। जैसे कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि कोविड में हमें बहुत नई तरह के विषयों पर सोचना पड़ा। हमें राइट टू लाइफ में, राइट टू इंटरनेट एक्सेस को भी कहीं ना कहीं आगे चलकर कोविड ने ये उजागर कर दिया कि कहीं ना कहीं वो भी आगे चलकर एक वन ऑफ द essential aspects of right to life बन जाएगा। So yes, law evolves with the society, but what we have dealt mostly, I have dealt with, is the social sciences aspect of the law, which is the practical aspect. And I think along with the analytical study of the law, our universities and our colleges should cater to the other side of the law also, that is the application based laws. जैसे कॉन्ट्रैक्ट हमें पढ़ाया जाता है, हमें मूट कोर्ट्स करवाए जाते हैं, हमें आईपीसी पढ़ाया जाता है, बट हम उसे कैसे, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं एंड बहुत बार होता है कि somebody says something behind our back or something about us which goes around. Can't we use, I mean, आप एज स्टूडेंट सोचिए कि कभी हम डिफेमेशन के लिए क्यों नहीं स्यू करते? You know, we can. I mean, you should think like that. You should think like that as students. अगर किसी ने आपको किसी भी तरह से इंजर किया है, it may be mentally, it may be bodily, it may be psychologically. What aspect of law deals with that kind of injury? Ubi just ebi remedium. Where there is a right, there is a remedy. But every day as law students, we get many a times our rights are violated, our rights are looked upon, but still despite that हम खुद ही उस राइट को एनफोर्स नहीं करवाते। सो आई थिंक एज लॉ स्टूडेंट्स एक थिंकिंग वाला एस्पेक्ट ठीक है। एवरी लॉ स्टूडेंट शुड बी अ ज्यूरिस्ट as well a judge when he joins law.
he should strive to become that, क्योंकि jurist का काम है सोचना कि लॉ है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, आज एक लॉ है, ये सही है, गलत है, कल 5 साल बाद की सोसाइटी में जब मैं जाऊंगा इस लॉ के क्या मायने होंगे और इसको किस तरह से चेंज होना चाहिए और इसकी किस तरह से एप्लीकेशन होनी चाहिए. मुझे लगता है एज लॉ स्टूडेंट्स आवर पर्पस इज नॉट ओनली टू स्टडी लॉ एज अ सब्जेक्ट बट टू स्टडी इट इन अ वे कि हम कल के ज्यूरिस्ट, कल के एकेडमिशियंस, कल के जजेस और कल के लॉयर्स की तरह सोचें. सो बेसिकली सपोज and here we are talking of interlink between humanities and law and the social sciences. So law, yes, we have to apply it in our society, but on the other side, on the other hand, the role of humanity goes that humanities goes कि उस लॉ में हम जो अपनी थिंकिंग है, जो अपनी जिसे कहते हैं ना कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी, उसको डालें और उस तरह से हमारे लॉज फ्रेम किए जाए, उस तरह से उनका चिंतन हो और उस तरह से ही उनका एप्लीकेशन हो. जैसे इसका एक इंटरलिंक जो मुझे समझ में आता है, और आई एम सॉरी मैं एक बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस के साथ यहाँ खड़ी हूँ आप सबके सामने, जहाँ पे बहुत लर्नेड प्रोफेसर्स, बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज मेरे सामने बैठे हैं, बट इसका जब ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज और लॉ के बारे में जब मैं सोचने बैठी तो वन ऑफ द आस्पेक्ट्स दैट केम टू माई माइंड वॉज द, जिसे अब मैं कलेक्टिव कॉन्शियंस अगर वर्ड यूज़ करूँगी तो निर्भया कांड की हम बात करेंगे. और निर्भया कांड के बाद बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए इन आवर IPC ऑल्सो एंड इन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑल्सो. एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जहाँ पे पहले 18 ईयर्स की एज थी जुवेनाइल की, तो बहुत इस बात पे बहुत प्रोटेस्ट हुए कि द एज शुड बी डिक्रीज टू 16 ईयर्स. एंड सो अकॉर्डिंगली the law was propounded. They came out with a provision, the legislature, where they said that from 16 to 18 years of age, the juveniles who are committing the crime and coming before the court, they shall be dealt with in a different manner. और वो different manner क्या थी? उन्होंने magistrates और courts को ये एक discretion दे दी कि आप बैठिए, इनकी preliminary inquiry कीजिए और देखिए कि क्या इनकी वो capacity थी to understand the consequences of what they are doing. So एक law जो हम 2000 से पढ़ते आ रहे थे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, वो किस तरह से चेंज हुआ? उसमें ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस दोनों के एस्पेक्ट आ गए. ह्यूमैनिटीज का एस्पेक्ट आ गया कि हम सबकी कॉन्शियंस को उस एक रेप केस ने इट शुक आवर कॉन्शियंस. सो दैट वाज द ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट ऑफ thinking which changed the law. And the social science aspect was that it came into practicality. Law changed. उससे 16 to 18 years के juveniles के लिए अलग एक provision बना दिया गया, उनको डील करने का एक अलग तरीका बना दिया गया. So yes, law, humanities and social sciences have to go hand in hand, because law without humanities क्या है? हम लोग के emotions का expression, हमारे emotions का, हमारी कॉन्शियंस का और हमारी थिंकिंग का एनालिसिस. और एनी लॉ विदाउट द हिंट ऑफ कॉन्शियंस, अ हिंट ऑफ इमोशंस, और विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ द ह्यूमन वैल्यूज इज फ्यूटाइल. एंड यस, सोशल साइंसेस, another thing is that social sciences comes in the picture in the way that law has to be carved in a way where it actually reflects the mood of the society. It actually reflects our culture, our values. Suppose this is we have Hindu Succession Act. Hindu Succession Act एक बड़ा आम सा एक्ट है जो हम जनरली पढ़ते हैं अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, एंड उसका बहुत एप्लीकेशन भी है. बट येस अगेन इट इज़ अ लॉ, बट उसका सोशल साइंस एस्पेक्ट क्या है? दैट इट इज केटरिंग टू द नीड्स ऑफ आवर हिंदू सोसाइटी, राइट. एंड उसका ह्यूमैनिटीज वाला एस्पेक्ट क्या है? दैट इट हैज टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑल दो हमारा मिताक्षरा, जो हमारा कोपासनरी लॉ है, जिससे हमारी सारी कोपासनरी प्रॉपर्टी है वो कैसे इनहेरिट होगी, वो सारा क्या है?
It takes into consideration all our emotions. Hindu law जो है वो ये कहता है कि a son has to be born for a Hindu to achieve moksha. So son को एक अलग पेडेस्टल पर हिंदू लॉ रखता है, और उसी तरह से हमारा जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है कहीं ना कहीं डिजाइन है. Yes, with time it evolved. With time, when there came a change in the society, what is social aspect, social science aspect of the law? That it evolves with the society. In 2005, Hindu law changed and it said no, daughter is the equal with the son, and she should get one of the shares in father's property. It changed section 14, limited owner से absolute owner बना दिया गया woman को. So this is evolution of law, which is the social science aspect of the law, and the humanities aspect is that it takes into consideration our values, our system. So this is my limited knowledge of the subject, but yes, as a you can say you're an elder to you student sitting here, I would give this message to you कि law को सिर्फ subject की तरह मत पढ़िए, उसको apply कीजिए. आप बैठकर सोचिए कि आज मैं शॉप में गया, what is we have this invitation to offer, display of goods, we have this, आप पढ़ते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में, whether it is an offer or invitation to offer, उसको उस तरह से अप्लाई कीजिए, बैठकर सोचिए. जब तक आप बैठकर लॉ को एनालाइज नहीं करेंगे, उसको सोचेंगे नहीं और उसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं बिठाएंगे, जैसे सर ने बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया दैट वी हैव दिस माइक्रोफोन्स with a name tag, and any damage with that copyright or trademark would have its own consequences. Everything we are एक सोचने का नजरिया है ये कि everything that we are doing, we are going through is in one way related to, in one way or the other related to law. So as law students, I think to be better law students and to make a better society tomorrow and to better these laws also, हम आज यहाँ पे खड़े होकर जो सोच पा रहे हैं, शायद जो 10 साल बाद आप लोग करेंगे वो हम आज सोच भी नहीं पा रहे. I mean you have that potential, you have that होता है ना कि चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड विथ टाइम द जनरेशंस बिकम बेटर. सो आई अश्योर यू, you are today better than me here. Why? Because I'm now 10 years, 15 years older than you. You are thinking in a completely new manner. वो मैं नहीं सोच पाऊंगी. So please utilize this potential. और ये सेमिनार्स रखने का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव यही होता है. उसका ऑब्जेक्ट ये होता है कि इतनी सारी बड़ी हस्तियों को बुलाया जाए, हमारे बच्चों को चिंतन की तरफ ले जाया जाए, ताकि वो कल बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर्स, बेहतर जजेस, बेहतर लॉयर्स और बेटर पिलर्स ऑफ द सोसाइटी बने और हमारी एक बेटर सोसाइटी बने. सो प्लीज ट्राई टू ब्रिंग दिस लॉ इनटू एक्शन इन योर लाइव्स. थैंक यू सो मच. विद दिस बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सरल शब्दों में हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती अनुराधा जी ने अपना संबोधन दिया. आप सबसे मेरा एक अनुरोध है, तो खड़े होकर उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं. एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी ऑब्जर्वेशन और कमेंट, क्योंकि हमारी तरफ से तो अब सेशन ओपन है ना, तो यू पीपल विल हैव टू पार्टिसिपेट इन टेक्निकल सेशन. द चेयरपर्सन्स हैव ऑलरेडी अराइव्ड. So in case you have your dilemmas or queries, your doubts, you are welcome in any subject. हाँ जी. सर, हम बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे स्टेट के कॉन्सेप्ट पे, और जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है आपने बताया जिस तरीके से कोरोना गया है उसके बाद में ये कॉन्सेप्ट एक तरीके से, अगर मैं ये कहूं कि उस तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा ही नहीं पा रहा. अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, वेस्टफेलिया ट्रीटी 1648 के बाद में वेलफेयर स्टेट आया था. पहले नेशन स्टेट या सिक्योरिटी स्टेट हम बोलते थे, जो नाइट वॉचमैन का ही काम करता था. अब चूंकि उस तरीके से सिक्योरिटी मिल ही नहीं पा रही है और जो स्टेट है उस तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा ही नहीं पा रहा है,
तो आगे क्या? स्टेट अब आगे क्या, कहां जाएगा स्टेट अब आगे? थैंक यू। है ना? तो बोलता है ओम नमो नारायणम नमस्तुभ्यम, ओम नमो नरो नारायणम। अब वो इसका मतलब ये है कि नर रूप में नारायण सामने आके वो अपनी लीला दिखाते हैं, वो खुद ही प्रश्न पूछते हैं, जबकि आंसर उनके पास खुद ही है। करो इसको डिकंस्ट्रक्ट सारे मिलकर। सर एक्चुअली स्टेट मेरी एमफिल का टॉपिक इसी पे था और मैं नेशनल सिक्योरिटी को जोड़ रहा था ह्यूमन सिक्योरिटी से, और मैंने इंडिया की ह्यूमन सिक्योरिटी की ऊपर रिसर्च किया था। इनका पता क्या तरीका है? आंसर इनके पास खुद के पास है और वो खुद आंसर दे भी रहे हैं पर छिपा भी रहे हैं। ठीक है, अगर इसका डिकंस्ट्रक्शन करें इनके आंसर का, इनका बड़ा अच्छा प्रश्न है। इनके प्रश्न के दो भाव है, मनोभाव, एक इमोशनल क्वोशेंट, एक इंटेलिजेंट क्वोशेंट। और इमोशनल क्वोशेंट में उन्होंने जो जमीन से जुड़ी हुई बातें उठाई, सीए उठाया, ये स्टेट लेवल माइग्रेशन उठाया और स्टेट का सिक्योरिटी लेवल एस्पेक्ट्स उठाई। बट इंटेलिजेंस क्वोशेंट उनको मजबूर कर रहा है कि ओ भैया जब ग्राउंड लेवल पे रियलिटीज देखते हैं, है ना, तो वो यथार्थ में कहां है स्टेट। हिंदू शास्त्रों की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो वहां अधिकार का, मानवाधिकार का कंसेप्ट था ही नहीं। वो सिर्फ कर्तव्य प्रायण, धर्म प्रायण परंपरा थी, जहां पर राजा के कर्तव्य से लेकर व्यक्ति के कर्तव्य तक सब पर जिक्र किया गया था। इंडिविजुअल व्यक्तिवाद की बात आई नहीं थी। सर जैसे आपने कहा कि हमारा जो लॉ बना, इंडियन लॉ है, वो हमारे सभी के धर्मों के हिसाब से बना, आज भी। अब इनसे पूछो, मेरे से पूछो, इनसे पूछो, भाई हमारी तो रोजी रोटी चल रही है, हम कैसे कहते कि लॉ नहीं? लॉ तो है, ऑर्डर नहीं है। क्यों? क्योंकि व्हीकल खड़ा करने वाले पे डिपेंड करता है। सभी को पता है ये इलीगल है, हम सभी को पता है कि पुलिस भी सामने। एक बात बताइए, आईपीसी कब आया था? 86 के उसमें क्राइम बंद हो गया? सर क्राइम तो हो गया, रिलीज कर दिया। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? सर वही तो कह रही हूं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो गया? सर हमारे पास सभी लॉ है, पर लॉ के आने के बाद ही इलीगल एक्ट। There are two aspects. There are two aspects. कितना अच्छा बोला खुद, सही है, डिस्कशन सही जा रही है। एक मिनट भाई साहब, ये ना मैं अखबार लाया था, कुदरत अपने आप मेरे लिए रास्ता बनाती है ना। तो अखबार में क्या लिखा है? हिंदू अखबार है, बोलता है डोमेस्टिक वायलेंस कोलन कांस्टेबल टोल्ड टू पे सपोर्ट टू एक्स वाइफ। लॉ है, जिसने मानना है, ठीक है भाई, आ रहा था। तो लॉ उसके लिए जो पालन करता है, लॉ उसके लिए जो पालन करता है, जो नहीं करता है उसके लिए नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे आपको ये हमारे दिखाया गया है ना, वो जो गीता का दूसरा अध्याय है, उसमें ये बताया गया कि ईश्वर को अगर आप मानते हो तो है, जो नहीं मानता उनके लिए नहीं है। If you are talking about the food laws, क्या चीज है जो contaminated नहीं है? आपको दही अच्छे से मिल जाती है? नहीं, 1 मिनट, आपका दूध प्योर है? दही जो मिल रही है मार्केट में क्या प्योर है? आप जो समोसा खा रहे हो क्या प्योर है? कॉन्टामिनेटेड नहीं है कहीं ना कहीं? नहीं नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 3 मक्खियां थी, है ना, सुनो, अच्छा बात याद दिलाया इन्होंने भाई साहब ने, फूड का एग्जांपल देके। मैडम टाइम तो नहीं ले रहा। 3 मक्खियां थी, एक दिन बड़ी भूख थी, तो जैसे आजकल मैरिज ब्रेकिंग का काम चल रहा है बड़े शहरों में, मैरिज ब्रेकिंग समझ रहे हो ना, ब्रेकिंग टू द मैरिज, वो 3 इडियट बन के लोग घुस जाते हैं किसी और की शादी में, तो मक्खियां भी गई, घुस गई। अब कई दिनों से भूखी थी, तो बोलती हैं कि एक मक्खी जो बड़ी ज्यादा थी, ठीक है, बड़ी एक्साइटेड थी और एनर्जी से भरपूर थी, वो फटाफट जाके रसमलाई के टेबल पे बैठती कि मैं तो सीधा स्वीट डिश वाली तरफ ही जा रही हूँ, बाकी काम बाद में, है ना। वो स्वीट डिश पे गई, जैसे ही उसने स्वीट डिश ली, विद इन 5 to 7 सेकेंड्स कोलैप्स कर दी, मर गई। अब दूसरी मक्खी अभी सोच रही थी कि मैं कौन सी टेबल पे जाऊं, इसके साथ ही जाऊंगा। अब जैसे उसने उसका हाल देखा तो उसको समझ आ गया कि ये मिठाई, इन्होंने फूड सेफ्टी की बात करी, वो उसको समझ आ गया कि इस देश में कानून है या नहीं है फूड सेफ्टी वाला, है ना। ये इंप्लीमेंटेशन की बात है। और जब दूसरी मक्खी ने देखा कि ये चीज तो खाने योग्य नहीं है, मैं कहीं और ही चली जाती हूँ,
वो दूसरी टेबल पे जाके बैठ गई। तो वहां गुलाब जामुन पड़े थे, रसमलाई की जगह उसने गुलाब जामुन जैसे ही बैठी, अब तीसरी मक्खी तब तक ये सोच रही थी कि जाना कहाँ है ना। इतने में अब वो उस शौक से निकली नहीं थी कि क्या जल्दी पड़ी है, पहले सोच तो ले कि खाना है भी या नहीं, यहाँ से क्या पता पूरी शादी में ही ऐसे पकवान हो। तो जैसे वो दूसरी मक्खी गुलाब जामुन पे जाके बैठी, वो भी मर गई। ठीक है, अब तीसरी मक्खी उनसे इस तरह से अटैच थी, है ना, जैसे राम और भरत का था आपस में। वो कहती मैंने तो जीना ही नहीं, मैं जाती हूं। जैसे वो पहले से बाहर निकली, थोड़ा चल आगे जाके वहां पेस्टिसाइड्स की दुकान थी, और पेस्टिसाइड की बाल्टी में से वो डाल के उसका जो वर्कर था, कर्मचारी था दुकानदार का, वो बोतलें भर रहा था। उसने कहा बस मैं तो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दूंगी, और उस मक्खी ने वो जहर चूसा, उसके असर नहीं हुआ। उसने थोड़ा सा और चूसा, उसके बिल्कुल असर नहीं हुआ। रादर वो जहर उसकी जो इम्यूनिटी पावर थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको खत्म करती गई, और उसके शरीर में जो कैंसर था वो खत्म होता गया, और वो मक्खी इतनी शक्तिशाली हो गई, है ना। ये हमारे समाज की स्थिति है। लॉ है, इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है। मतलब जहर खा के जिंदा है, मिठाई खा के मर रहे। ठीक है, और साहब आपके प्रश्न का उत्तर ये था, आर्टिकल 38 एंड 39 आपने देखे होंगे, जो उधर सिक्योरिटी वाली बात आ रही थी, सेफ्टी वाली। आर्टिकल 38, 39 B and C. But as a law student, I think it would more befit us if we would have acted in that situation, pursued that violation of law and moved ahead, and would have done something for the trespassers who had parked that vehicle in front of your gate. Yes. You know, you should actually, this is what I am saying, as law students ना, मतलब हम लोग वो social engineering का concept पढ़ते हैं। एक तो इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियरिंग में क्या होता है, वो एक गाड़ी को ठीक करने की प्रक्रिया बताते हैं, बट लॉ में क्या बताया जाता है, सोसाइटी को ठीक करने की प्रक्रिया। वी आर सोशल इंजीनियर्स, एंड आई थिंक इट वुड बिफिट अस if we would actually act upon what we are studying, if we would actually कल हम जाकर दुकानदार से लड़ें कि नहीं this is what Consumer Protection Act says, this is what Contract Act says, but we don't. This is what I am saying. You are starting it, please apply it. Once you start applying it, आप खुद ही वो अंदर का एक डर, वो हेजिटेशन, वो सब कुछ जाती रहेगी, and tomorrow you will be the leaders who would be implementing the Constitution. सर, मेरी उम्मीद थी कि आप स्टेट का जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर जरूर मुझे थोड़ा सा सेटिस्फाई करोगे, मुझे ऐसे लगा था। सर, होप्स की बात थी, उन्होंने एक लेवियाथन क्रिएट कर दिया था, उनकी बुक भी है लेवियाथन, सॉरी। तो उन्होंने भी एक बात कही थी कि अगर ये राजा प्रजा की रक्षा ना कर सके तो उसको अधिकार है कि वो उसको उतार दे। आज के समय में अगर वही लेवियाथन है और हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर किसी को अधिकार दिए हैं और वो हमारी रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो मैं क्या करूं? जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, परंतु ये शब्द लॉक के थे कि अगर राजा अपने कर्तव्य में फेल हो रहा है तो जनता को पूरा अधिकार है उसको अप्रूव कर दिया जाए। कहीं भी आज रोका नहीं गया, कर सकती है। ठीक है, ब्राजील में हो गया, पेरू में हो गया, इजराइल में शुरू था, फिर वो रिस्टोर कर दिया। ठीक है, और उधर भी हुआ, अमेरिका में भी हुआ। Terms are used frequently, that is constitution, constitutional law and constitutionalism. Everyone knows the special meaning of these three terms, but from you I want to know the meaning of these three terms in real sense of letter and spirit. Constitution is the bond, Constitution is a social contract. As a philosophical scholar, researcher, it is a philosophical bond between the people as well as the power. दो शब्द मैं भी कहना चाहूंगा इसके अंदर। हमारा अध्यात्म कहता है, आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और सर ने भी बहुत अच्छे आंसर दिए। तुम वही हो जो तुम्हारी सोच है, जैसी तुम्हारी सोच वैसी तुम्हारी नीयत, जैसी तुम्हारी नीयत वैसी तुम्हारी इच्छा, और जैसी तुम्हारी इच्छा वैसे तुम्हारे कर्म, और जैसे तुम्हारे कर्म वैसे तुम्हारा भाग्य।
फुटेला कॉलेज के माननीय सचिव श्री संजीव जैन जी एडवोकेट को कृपया वो माइक पर आए। Thank you, Malik sir. Good morning, all of you. On behalf of Lala Hansraj Putela College of Law and being member of Sirsa Education Society, I take this opportunity to propose vote of thanks to our worthy chief guest, Madam Anuradha, Chief Judicial Magistrate, cum District Legal Service Authority Secretary. Ma'am, we are very really grateful to your motivational speech and services rendered by you as a CGM, cum Secretary DLSA towards women, socially backward and downtrodden people of the society. I am thankful to Professor Tarun Arora ji, Head Department of Law, Central University, Punjab, Bathinda, as a keynote speaker to this inaugural session and enlightening valuable suggestions on the ongoing topic. I am also grateful to Dr. Ashok Makkar ji, my elder brothers, Head Department of Law, CDLU, Sirsa, being guest of honor for this seminar and acknowledge the services made by the Department of Law, CDLU, Sirsa since 2003. I am thankful to all the teaching faculty and research scholars of various institutions for imparting their research papers in the international seminar. I am also indeed indebted to all respected members of print and electronic media as well. I do hope that our media brothers would always guide us towards achieving the aim of making knowledgeable legal society in our surroundings. I am very thankful to our worthy members of Sirsa Education Society, General Secretary Uncle Norang Singh ji, Joint Secretary Shri Suresh Goyal ji, Ex-Chairman Shri Parveen Bagla ji, College Vice President Shri Ramesh Mehta ji, College Treasurer Shri Suraj Bansal ji, respected Desh Kamal Bishnoi ji, Shrimati Usha Mehta ji. I would also like to congratulate entire college staff, principal and organizing committee to organize such a big event. Thank you very much. Thank you. अब मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे सिरसा एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी नौरंग सिंह जी और प्रिंसिपल सर डॉक्टर अनूप सिंह जी को कृपया वो हमारे कॉलेज की तरफ से आगे